Hola, hola. India, India, I love you. I love you, India. احكي له معك ستة بخمسة. احكي معاه نحكي يعطيك العافية. يزيد اخي يزيد. He's giving very good deal. I love you. Yes, this is the. You have to understand. Not inside the bottles. This is private sector. Yeah. The ones that you buy from the souvenir shop are being controlled by the Ministry of Religious and the government. These ones they fill it with tap water and sand from the beach and tell you this is from the Holy Land. This is also church custody? Yeah. This is the same church. Where we are going now? Milk Grotto Church. Yes. Jaitun. So in Jew it's Arab also Jaitun. Stay here in the shade. There is a place shade inside. That's kind of a yard. Include them inside the Gospels. Otherwise, we would have not 4 Gospels, maybe 20 or 30 or whatever. Okay? So not everything outside of those books is wrong or right. Good? So many stories are being taken from the outside books, and the church adopt these stories, but they don't guarantee 100%. So what's the story about this place here? The story says, after Jesus was born, we know that Joseph was one day outside, and then the angel appeared to Joseph, and he told him, you have to take Mary and Jesus and go fled to Egypt. And this is what happened. He wants me to translate. Ah, sorry. Always remind me. Always remind me. Auntie, Ladies, इकडे या ऐका जरा काय सांगतात ते नंतर विचारत बसू नका सगळं. त्यांनी सांगतायत की वो बोल रहे हैं कि ग्रोटो का मतलब होता है केव. sorry. जो वो कहते हैं कि सही है गलत है, हम उसको सही गलत बोल नहीं सकते, वो सच्चाई भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है. और इस चर्च की खासियत ये है.
Okay, I just want to tell you something. Whatever you think I'm wrong or you want to add something, you can do it, no problem. If you think I say something I'm just wrong, going to in translate. Yeah. yeah, well, that's what I'm saying. You're a pastor, so you know more than me in those things. So, anyways, the story says Joseph listens to the angel. He takes Mary and Jesus, and they start leaving the place they are in. And on the way, Jesus cries. He's a baby. He wants to eat. So Mary goes into a cave and she wanna breastfeed him. तो एक While दिन she, ऐसे अच्छा ah, ओके एक go दिन ahead. ऐसे होता है कि मतलब एंजल जो स्वर्गदूत है यूसुफ के पास आता है और दोनों को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। और जब वो जाते रहते हैं कभी यीशु को बहुत भूख लगती है और यीशु मरियम उसको दूध पिलाने के लिए लेके आती है। While doing this, one of the milk drops on the floor, and when you see, you will see the cave is reddish. The stone and the rocks of this cave is reddish. So when this drop came on the floor of that cave, the part where they were sitting turned all white, like glowing white. जब भी मरियम उसको दूध पिला रही थी तो उसका एक दूध का जो बूंद है जो नीचे गिरता है और आप वहां पे देखोगे कि ये जो पूरा जो फ्लोर है वो रेड हो गया है, रेडिश हो गया है, रेड एंड वाइट। Red. It was red. It अच्छा became ओके, white. वो जो फ्लोर था वो रेड था, पूरा सफेद हो गया, सफेद हो गया। Okay, you will see the original rock when you go in. After you finish at the end, you will see the white cave. It's a small piece of the whole cave. Okay. Now, what's important here? This is the only place that we see in Mary's paintings or even statues like the one that we see on top of this place, bare-breasted. Okay? Not any other way. You will see her breastfeeding Jesus and her breast is out. Other than that, all the pictures, all the paintings, all the statues for Mother Mary, she's fully clothed. ये चर्च की खासियत ये है कि यहाँ यही एक जगह है जहाँ पे मरियम का ऐसा फोटो है जहाँ पे वो यीशु मसीह को दूध पिलाते हुए दिखाई गई है, जो कवर नहीं किया गया है। जैसे जनरली हर फोटो में मरियम पूरी ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन यही एक जगह है जहाँ पे मरियम जैसे ओपनली दूध पिला रही है यीशु मसीह को। For some time, people would come here and they will scrape from the walls of the cave. Why? To be blessed by it. Some people would eat it, some people will mix it with water and drink it. And they will return telling if they have any diseases, they were cured. Mostly, if they didn't have any babies, the lady will be pregnant in double and twins and triplet and quadruples. And they will send letters to the place here, thanking them about it. No, just, I will add just one thing. With the time, the church forbid anyone from taking from the walls. They are taken, the priests are doing that instead from other places in the same cave, and they sell it for $1 or $2 a bag that you mix it with water and you drink it, so you're not allowed to touch any wall. Maybe get blessed, but not to scrape any of the things. ये गुफा से कोई मट्टी पहले लोग निकाल कर लेके जाते थे और जो लोग उसको खाते थे या पानी में मिलाकर पीते थे, उनके सारे जो बीमारी थी वो चंगी हो जाती थी। और स्पेशली जो औरत लोगों को बच्चे नहीं होते थे, जब वो मट्टी खाने के बाद या पीने के बाद उनको 1, 2, 3, 4 बच्चे होते थे, और उन लोगों ने जिनको ये चमत्कार हुआ है उन्होंने लेटर्स लिखकर यहाँ पे भेजे और बहुत सारे लोग आने लगे और बहुत सारे लोग मट्टी लेके जाने लगे। इस तरह के यहाँ पे वहाँ पे Now I give him only 5 minutes to go down and come back. Okay? उन्होंने Good. रखी हुई है, 1 या 2 Because they डॉलर will में take वो 10 यहाँ पे anyways. मिलती है। I will say 5. 10 is वो okay. लेके जा सकते And we हैं। need अभी to go यहाँ से all the way खोलना to the बंद कर bus दिया है। running. वजह From ये there है we कि have to खत्म go हो जाए। lunch.
Where's the lunch? I will make it. I will call him exactly. I told him at 12, but obviously I called him. I'm gonna call him now. Tell him not 12. Probably it's gonna be at 1. या अभी हम मिल्क ग्रोटो चर्च में एंट्री कर रहे हैं और ये देखो, ये एक सिंबल है चर्च का। यहाँ पर मिल्क ग्रोटो चर्च में हम अभी जा रहे हैं। अभी हम नीचे उतरेंगे यहाँ से। मिल्क ग्रोटो चर्च, जहाँ पर मरियम ने, मदर मैरी ने यीशु मसीह को दूध पिलाया और कहा जाता है कि वहाँ पर उसका दूध गिरा। और यहाँ पर एक ऐसी धारणा है कि जो कोई इस मिट्टी को चखेगा, अगर किसी को बच्चा नहीं होता है तो इस मिट्टी को चखने के बाद उसको बच्चा होगा। ये वाकया या फिर इस जगह का जो उल्लेख है वो बाइबल में नहीं है, लेकिन ये जो स्टोरीज है वहाँ पर काफ़ी प्रचलित है करके ये वहाँ पर एक चर्च बनाया है। देखो, मिल्क ग्रोटो चर्च इसको कहा जाता है और बिल्कुल सफ़ेद कलर की मट्टी हमको यहाँ देखने मिलेगी। मिल्क ग्रोटो चर्च, ये देखो। और वो जो पत्थर है वो बिल्कुल यहाँ पर लाल जैसे हो गया है। पहले लाल था लेकिन अभी थोड़ा सा उसका कलर सफ़ेद जैसे होने लगा है। ये देखो, मिल्क ग्रोटो चर्च। और लोग यहाँ से मट्टी ले जाते थे पहले, लेकिन अभी कुछ मट्टी वहाँ पर चर्च जो है वो वहाँ पर रखता है पैकेट्स में। आप डोनेशन दे सकते हो और वहाँ से इस चर्च की मट्टी आप लेके जा सकते हो। देखो, ये है गुफा दिख रही है हमको और ये पूरा चर्च। यहाँ से एक फ़ोटो है यहाँ पर। तो ये देखो, मिट्टी निकाली है लोगों ने यहाँ से। और शायद यहाँ पर आवाज़ हमारा म्यूट हो गया था, इसलिए हम अभी ये देखो मिल्क ग्रोटो चर्च, बिल्कुल नेटिविटी के बगल में ये चर्च है, मिल्क ग्रोटो चर्च। एक क्रॉस बना है वहाँ पर। ये मट्टी देखो, लोग निकाल निकाल के जो लेके जाते हैं, ये वो है। और और यहाँ पर एक चैपल है, आप बैठ सकते हो यहाँ पर प्रार्थना के लिए। देखो, सारी चेयर्स रखी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चैपल होता है या फिर यहाँ आप बैठ सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। और यहाँ से कुछ जाने के लिए है, शायद है। तो हम अभी यहाँ से देख रहे हैं कुछ एंट्रीज अंदर होती है क्या। अंदर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मिल्क ग्रोटो चर्च। ऊपर से उजाला आ रहा है। तो यहाँ पर जाने के बाद हमको ये देखो, हम ऊपर आ गए। अभी ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बनाया है यहाँ पर।
ये ऊपर से हमने अभी देखा था उजाला जो आ रहा है ये, और ये बाहर का व्यू है इसका। आप इसको घूमकर देख सकते हो। और बेथलेहम की जो पहाड़ी है वो भी हमको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा व्यू है जो काफ़ी बहुत कम हमको बेथलेहम में आने के बाद देखने मिलता है। ये देखो यहाँ पर बेथलेहम जो पहाड़ी है पूरी, तो इस पहाड़ी को हम देख सकते हैं। और इज़राइल में ऐसे ही सारे सफ़ेद पत्थर हमको देखने मिलेंगे। यहाँ एक छोटा सा शायद कब्रिस्तान भी है उनका, चर्च के एग्जैक्ट पीछे। तो इसको हम ग्रेव यार्ड कहेंगे। ये ग्रेव यार्ड है, सिमेट्री नहीं, ग्रेव यार्ड, जहाँ पर चर्च होता है और वहाँ पर कब्रें अगर होंगी तो उसको ग्रेव यार्ड कहा जाता है। और पीछे आप देख सकते हो पूरे इज़राइल के सारे सॉरी बेथलेहम के सारे घर हमको यहाँ पर देखने मिलेंगे पीछे। और ये एक ऐसी जगह है, काफ़ी खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया है इस चर्च को। आप देख सकते हो जैसे पूरे दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड ये लोग मेंटेन करते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और कुछ लिखा है, बोर्ड्स हैं काफ़ी यहाँ पर। तो ये पूरा मिल ग्रोटो चर्च। और इसके बाद अभी हम जाएंगे जहाँ पर क्रूस जो है, यीशु मसीह का जो क्रूस का रास्ता है, विया डोलोरोसा, वो हम आपको दिखाएंगे अभी।